Good afternoon, friends. I'm Satish Goyal from Shastra CP Study Circle. Today we have managed one webinar which we've yesterday only managed with CA Manish Gupta ji, who's with us as of now. On the topic, basically the audit trail to be implemented by companies with all the any accounting software. So today we have this with the Tally. So friends, we have CA Manish Gupta ji with us, who is from Saraswati Accountant Software Private Limited, a Tally 5-star partner, and this firm is in business since 1999. And we both Manishi and me and Study Circle are also associated for quite long now. Manishi was earlier in a resident of Shastra also, so that is also one of the privilege we have with him. So that is how I just spoke to him yesterday at around this time only, 2 o'clock, 3 o'clock, and he agreed to it and he managed it for us today for a small, immediate session, looking to the need of the hour. And friend, we also have Ankit Khatwa ji as well as Balwant Singh Chauhan ji. Balwant Singh ji, आप भी एक बार वीडियो के साथ आ जाए. So Ankit and Balwant ji both are from Tally. They are product experts from Tally and associated with Tally for almost 7 to 15 years. Ankit ji is a zonal GTM manager with Tally. And all these three personalities will take us how audit trail, which is mandatory to be implemented from tomorrow for all the companies registered in India. So over to Manish, sir. You can start, and please excuse me for my bad throat as well as for my we can start. Many calls and all getting received. Many people wants to join who are registering just now. Okay. Over to you, Thank you, Satish. Okay. Welcome, sir. First of all, namaskar, everybody. I am Manish Gupta. Satish has already given my introduction. I am from Saraswati Accountant Software Private Limited. We are Tally certified 5-star partner since 1999, right? So it's almost 25 years into this business. And we have been specialized into the implementation of accounting, inventory, taxation, and payroll using Tally software. We provide lots of other services in Tally, like customization, integration of Tally with other softwares, and we are regularly conducting training sessions on various modules of Tally. I've already spoken to Satish. We did it earlier also. We can do it in future also. And currently the need is about this audit trail feature, not feature, it's a compulsion rather, which has just been, which is going to be implemented with effect from tomorrow. However, this rule has been into news for past 2 years, right? I think it came first in 2021, it got deferred in 2022, and now it's going to be implemented from tomorrow. But आप लोगों को मैं एक चीज और बताऊंगा, ये तो ठीक है, रूल तो आ गया जो आ गया, लेकिन बहुत सी companies, whether it's a company or non-company, they are using this module otherwise also. Now there's no compulsion because there are a lot of companies जो इस module की बहुत ज़्यादा requirement रखती है to control their people and to have the complete control on the accounting, right? So anyway, मेरे साथ मेरे colleague हैं Mr. Ankit Khatwa and Mr. Balwant. They are very good experts of Tally, right? तो session तो आपके Mr. Ankit और Mr. Balwant करेंगे, but you will be having a lot of queries with regard to the implementation of this particular feature. ये लोग आपको बड़ा comprehensively दिखाएंगे और इसमें आप लोगों के काफी questions आएंगे और आ रहे होंगे regarding the versions to be used for this particular module, how to take care of your data, what will happen, you know, how to view all the reports. So Ankit and Balwant will go through it, or we will go through the question answers later on. तो एक बार इससे पहले हम आप लोगों को ये प्रोडक्ट दिखा देते हैं, पूरा का पूरा फीचर्स दिखा देते हैं. हालांकि इसमें एक दो चीजें मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा. इसके अंदर बिहेवियर ऑफ वर्किंग is nothing different. It's the default behavior. Whatever you're doing, you will continue to do.
There's no new field edit, right? The only thing is that we will have to enable this feature, and we must know how to view all the reports, how to see all the audit trails, kahan par kaise ye maintain ho rahi hai. So that Ankit and Mr. Balwant will go through it. So Ankit ji, I think you can share your screen, and whatever Yes, you yes. want to start, you can start it. Right? I've Thank allowed you. screen sharing to all of you three. And Okay. one question which I was thinking while you were talking, we have to, as you said, we have to enable a few items in Delhi. Can it be because our clients would be interested in getting it done through us? They may not be doing it themselves. I mean, they may not be able to do it themselves. So, is it possible to do it online from our system to their system? No, sir. If you're on cloud, then you can do it. Otherwise, you will have to take the system on remote. और ये जो feature जो enable होता है, ये administrator के through होता है. Okay. अभी तो जनरली कोई एडमिनिस्ट्रेटर वाला नहीं रखा होता, जनरली नहीं रखा होता. सर इसमें तो एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर्स आपको बनाने पड़ेंगे. ओनली देन यू विल गेट द सिग्नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, कौन क्या एंट्री कर रहा है, राइट. अदरवाइज इसमें एक दो चीजें मैं पहले बता देता हूँ. हालांकि अंकित एंड मिस्टर बलवंत तो इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड अलग होगा, यूजर्स का पासवर्ड अलग होगा. और इसमें मेरी जो सजेशन है, हम लोगों की जो सजेशन है कि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड किसी को शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपकी ट्रांजैक्शंस कैप्चर हो रही है. वाउचर बनाया राम ने, चेंज किया श्याम ने, उसके बाद XYZ ने उसको चेंज किया, तो सारी ट्रेल्स इसके अंदर मेंटेन होती है. ठीक है ना. हालांकि इसके काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं. इसको करने से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है आपके बिजनेस में, आपकी ट्रांजैक्शंस कौन कौन से किसने क्या डेलिबरेट चेंज किए, इनडेलिबरेटली चेंज किए, तो दैट यू कम टू नो. And that too further, if you have given the security rights to those people to change the backdated vouchers. अब जैसे कि अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, तो हमने अपनी कंपनी में बैकडेट का वाउचर राइट्स किसी को भी नहीं दिया एक्सेप्ट वन पर्सन. ठीक है ना. तो those things will be addressed. Anyway, Ankit, you may please start the session, right? Rest you will take up आपसे क्वेश्चंस आपने एक चीज छेड़ दी, उसमें क्वेश्चन आ गया. हाँ बोलिए. चलिए पहले अंकित जी को करने देते हैं. हाँ, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन आंसर पहले शुरू हुआ है. ठीक है सर. ओके अंकित जी, प्लीज. So thank you Manish ji, Satish ji. Really it is a really privilege to be part of this session. I think very quickly we have organized this session. Yesterday only we thought of doing this session. I think Satish ji rightly said this is the need of the hour. I think the notification has been there. I think it is going to be applicable from 1st of April. So it's better to understand it as you are the industry experts and chartered accountants. So a lot of handholding and guidance is required for our customers. So this is a very short session. I'll make it clear because we are on 31st of March, and there are a lot more expectation is there to complete many pending work. So Satish ji has just told me to cover maximum things within 30 minutes. So I'll try to cover the broad things which is immediately required from your end. So मैं domain वाला जो हिस्सा है, जो part है, उसको मैं touch नहीं करूँगा because domain any which ways is your understanding and your expertise. So I'm not going to touch upon that. I'm just going to touch upon the tally part. Tally part. So I think that would be highly required for your end. So I'm sharing my screen. Once my screen is visible, just let me know. Your screen is visible. What is the domain? I mean, without domain, is it possible to do it or not possible to do it? So domain in the sense जो MCA का guideline है, जो rules है, जो article है, तो वो जो part है, I think एक standard guideline है जो कल yesterday, I think day before yesterday, जो ICI ने he would not be talking about the law. He would be talking about the implementation in Delhi. Yeah, okay. It's okay. Please go ahead, sir. Yes. So Balwant ji is there. Balwant ji, just add whenever you think think to add something. So to start with,
जिन जिन कंपनीज पे ये एप्लीकेबल हो रहा है जो 1 अप्रैल से, हालांकि ये 2 बार डेफर्ड हो चुका है, बट अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि आगे ये फर्दर डेफर्ड होगा। सो इस वजह से हमारी टाली की तरफ से काफी हम अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं। लगभग अभी लास्ट वीक से हम करीब 15-20 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए, क्योंकि रिपीटेड डिमांड्स आ रहा है कि आप एटलीस्ट बेसिक बता दीजिए कि कैसे करना, कैसे इसको स्टार्ट कैसे करना। सो वी आर गोइंग टू शो यू दैट ओनली, कैसे स्टार्ट करना है। जैसे मनीष जी ने कहा, मैसिव चेंज नहीं है कुछ भी, हम इसी चीज पे ध्यान देते हैं कि आपका जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल रहे, आप आपके बिहेवियर में बहुत मैसिव कोई चेंज ना करना पड़े, और जैसे ही आप आज काम कर रहे हैं वैसे ही आप काम को कंटिन्यू रखें। सो जिन जिन कंपनी पे ये एप्लीकेबल हो रहा है वो आप सभी को अच्छे से पता है, वो है कि ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, 1 पर्सन कंपनीज, कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज, नॉट प्रॉफिट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड निधि कंपनीज, इन्हीं पे इमीडिएट इम्पैक्ट हो रहा है। और जिन पे नहीं हो रहा है वो है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड, LLPs। सो इन पे जो है इम्पैक्ट अभी है नहीं, ये कंपनीज इससे बाहर है। सो LLP पे नहीं हो रहा, और किस पे नहीं हो रहा? LLPs पे नहीं, इंडिविजुअल कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। वो तो कंपनी है ही नहीं, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपनी नहीं है, और LLP पे नहीं हो रहा बेसिकली, जो कि ROC के साथ है। ठीक है, ओके। यस, यहाँ पे जो है इम्पैक्ट नहीं है। सो ऑडिट ट्रेल का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि जो भी एप्लीकेशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसमें जो है एडिट लॉग का फीचर जो है वो डिफॉल्ट होनी चाहिए फ्रॉम द डे 1, और वो फीचर जो है यूजर के एंड पे ना रहे कि वो डिसेबल एनेबल कर पाए। तो वो सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशन का वो एक डिफॉल्ट बिहेवियर रहे कि डे 1 से जो है वो एनेबल्ड रहे, यूजर के पास ये ऑप्शन ना रहे उसको डिसेबल एनेबल कर पाए। और ट्रैकिंग ऑफ ईच चेंज मेड इन ट्रांजेक्शन, जो भी क्रिएशन से लेके उस ट्रांजेक्शन का क्रिएशन से लेके अल्टरेशन से लेके मॉडिफिकेशन से लेके कैंसलेशन से जो भी बिहेवियर होता है एक ट्रांजेक्शन में, सिंस क्रिएशन टू एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका एक हिस्ट्री, एक लॉग मेंटेन रहे। पहले वर्जन में क्या था, दूसरे वर्जन में क्या हुआ, तीसरे वर्जन में क्या हुआ, ये जो सीरीज ऑफ थिंग्स है, तो वो उस मास्टर में, वो वाउचर के ट्रांजेक्शन में वो मेंटेन करके रख पाए वो सॉफ्टवेयर। इंटरप्रिटेशन ये है, और उसमें जो चेंज जो जिस डेट पे हो रहा है तो वो भी डेट स्टैंपिंग हो पाए उस वाउचर में, उस मास्टर पे, और इंश्योर करे कि जो एप्लीकेशन इंश्योर ये करे कि ये चीज जो है डिसेबल ना रहे उस फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरेशन पे। और ऑडिट ट्रेल जो है, ऑडिट ट्रेल फैसिलिटी जो है शुड हैव बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द इयर्स। ऐसा ना हो कि आप आधे मंथ में आपने ऑडिट ट्रेल में आपने काम किया, आधे महीने में आपने नॉन एडिट लॉग में ट्रैक किया। इंटरप्रिटेशन यही है कि पूरे साल जो है ये उसी एप्लीकेशन में ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहे। एंड ऑडिट ट्रेल जो है शुड नॉट बी टेम्पर्ड। तो ऐसा यूजर जो है बिल्कुल ट्राई ना करे या कोशिश ना करे कि उसको जो ऑडिट ट्रेल का जो भी हिस्ट्री है या उसका जो इम्पैक्ट है उसको टेम्पर्ड या किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन ना करे। ऑडिट ट्रेल टू बी प्रिजर्व्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द रिकॉर्ड रिटेंशन, और ये सब चीजें जो है वो एप्लीकेशन में रिटेन्ड रहे। और ये भी मेरे ख्याल से आपको जो गाइडलाइन जारी हुआ है अभी 2 दिन पहले ही ICAI ने जो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्कुलर का वो भेजा है, तो उसमें भी काफी चीजें है मेंशन है। आई थिंक आप लोग उसको देख रहे होंगे, उसको डिटेल में गो थ्रू कर रहे होंगे कि आपको एक कस्टमर को क्या गाइड करना है, क्या सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कैपेबिलिटी को इंश्योर करना है कि वो जिन पे ये एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो कंपनीज जो है क्या ये एडिट लॉग में ये ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको वेरीफाई करें, सर्टिफाई करें। नीड टू सर्टिफाई इफ द सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द कंप्लाइंट और नॉट। तो इसको आप देखें तो बेसिक इंटरप्रिटेशन यही है। तो इसी को देखते हुए जो है
हमने एप्लीकेशन में ये सब चीजों को डिजाइन किया है और कोशिश किया है कि एमसीए जो जिस तरीके से इसको ड्राइव करने की कोशिश कर रही है तो उसको हम एप्लीकेशन के अंदर डिजाइन करके दें हमारे यूजर को और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, हमारे एक्सपर्ट्स को, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को, सो दैट ये जो एप्लीकेबिलिटी है इजीली फ्लो हो पाए और इजीली अडॉप्ट हो पाए इंडस्ट्री में। सो अकाउंट एडिट ट्रेल जो है, ये फीचर्स जो है एप्लीकेशन के अंदर कैसे होना चाहिए, तो उसका जो अगर हम फीचर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो जो डेट स्टैम्प है, वो डेट स्टैम्प जो है, the audit trail should record the details of action performed in the system date wise। एप्लीकेशन के अंदर भी देखेंगे कि किस हिसाब से जो है एप्लीकेशन इसको डेट वाइज, टाइम वाइज भी रिकॉर्ड कर रहा है, सो दैट एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बने कि उस जो कंपनी जो स्टार्ट हुई है या इसमें जो माइग्रेट हुआ है ऑडिट ट्रेल में, वो किस डेट पे हुआ है। अगर वो किसी भी सर्कमस्टांस में वो नॉन एडिट लॉग में ट्रांसफर हो रहा है उसका डेटा, तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। वैसे ही लेजर पे, मास्टर पे उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, अगर वो कुछ चेंजेस हो रहा है या कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है। एंड स्कोप अगर देखें तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर स्कोप क्या होना चाहिए, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुड ट्रैक ऑल द चेंजेस डन ऑन द ट्रांजैक्शन एंड कैप्चर सच डिटेल्स इन द ऑडिट लॉग। सिंपल वर्ड में क्या है, द सॉफ्टवेयर शुड ट्रैक एंड लॉग चेंजेस राइट फ्रॉम क्रिएशन टू अल्टरेशन टू डिलीशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो ये चीज जो है ये थ्रू आउट है फाइनेंशियल ईयर इसको रिकॉर्ड करके रखें। एंड एडिट लॉग फीचर शुड फीचर टू एनेबल्ड ऑल द टाइम्स, कि ये जो फीचर है ये थ्रू आउट द ईयर एनेबल्ड रहे। ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है कि ये फीचर जो है हमेशा के लिए ऑन रहे और यूजर के पास इसका मतलब एक आप कह सकते हैं एक बटन, मतलब ऐसा ना हो कि वो उसको कब जब चाहे डिसेबल एनेबल ना कर पाए। तो ये दोनों चीजें बड़ी मतलब बिल्कुल क्लियर है, पर्टिकुलर है कि एप्लीकेशन के अंदर ये स्कोप होना चाहिए, अदरवाइज दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑडिट ट्रेल एप्लीकेशन। और इसको डे कंपनी पे लागू हो रहा है, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग को लेके आगे बढ़े। एंड यूजर जो है, जैसे आज भी मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में जो है यूजर वाइज हम राइट्स दे देते हैं, यूजर वाइज लॉगिन क्रिएट कर देते हैं। तो एडिट लॉग में भी उसी बिहेवियर में अगर आप जा रहे हैं तो एडिट लॉग क्या करेगा, जैसा अभी मनीष जी कह रहे थे कि किसने क्रिएट किया, किसने अल्टर किया, किसने डिलीट किया, तो ये जो है पर्टिकुलर जो है एक चेंज जो है बन जाए सिस्टम में कि ए से क्रिएट हुआ था, बी ने उसको मॉडिफाई किया या अल्टर किया या डिलीट किया, तो इस हिसाब से पर्टिकुलर एक चेन बने। एंड किस वर्जन से किस वर्जन में ट्रांसफर हो रहा है, वर्जन वाइज जो डिफरेंस है, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज or the one you choose should show the version difference and facilitate the comparison between versions, previous version, to know what elements of transaction have been modified or changed, etc. तो किस वर्जन से किस वर्जन पे आप जो पहला वर्जन क्या था, दूसरा वर्जन क्या है, उसका क्लियर एक जो कंपैरिजन जो है वो भी एप्लीकेशन के अंदर आप देख पाएंगे। तो ये भी बने रहे और सिक्वेंशियल ऑर्डर में रहे। सो जैसे अब मैं बार बार वही चीज को कह रहा हूँ कि एक चेन जो है वो लॉग के फॉर्म पे रखे कि पहला उसका फॉर्मेशन या जो पहला जो क्रिएशन जो है वो कब हुआ था, एंड उसके बाद उसका हिस्ट्री क्या रहा है पूरा एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक। तो उसका जो है डेट, टाइम और इसकी स्टैंपिंग के साथ एक चेन के फॉर्म पे वो सिस्टम पे रिकॉर्डेड रहे और वो डिसेबल ना रहे, वो कंटिन्यू थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर वो मेंटेन रहे। ये जो है बेसिक हमारा एमसीए का इंटरप्रिटेशन को लेके जो अकाउंटिंग एप्लीकेशन के अंदर जो स्कोप होना चाहिए, जो कैपेबिलिटी होना चाहिए, वो ये है ब्रॉडली अगर हम बात करें एमसीए के लिए। अगर इतना ही हम अगर एक एप्लीकेशन के अंदर अगर हम डे वन से अगर हम देख लें, इसको इम्प्लीमेंट कर लें, देन आवर जॉब इज डन। और इसी को लेके जो है तो इम्पोर्टेंस इज देयर कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल कंपनीज में डील करते हैं, कुछ एडिट लॉग वाली कंपनी होगी, कुछ नॉन एडिट लॉग वाली कंपनी होगी, तो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना होगा, डेटा को अलग अलग अलाइन करना होगा, कुछ बेसिक ट्रेनिंग जो है यूजर को देना होगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनको भी थोड़ा सा फेयर अंडरस्टैंडिंग देनी होगी। तो जॉब जो है थोड़ा सा हमें एडवांस में अगर कर लें
आखिरी तारीख में ना जाएं, थोड़ा सा यही होगा। इसी को लेके हम काफी अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं और आज का जो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अगर आ गया देन डेफिनेटली जो मास है वो कहीं ना कहीं आपसे ही कंट्रोल है एंड आप एजुकेट करते हैं इस इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री में आप मतलब आपसे ही गाइडेंस से फ्लो होता है चीजें, तो सही रहेगा। एंड इसको करने के लिए क्या करना है, बेसिकली इमीडिएटली जो है अपग्रेड करना है सिस्टम को। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेडी रखना है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखने के लिए हमें इमीडिएटली जो है, अगर हमारा टैली प्राइम नहीं है, 2.1 रिलीज नहीं है, 2.1 रिलीज में हमने लास्ट ईयर इसको दे दिया था। आज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एडिटलॉग EXE को रन करते हैं, एप्लीकेशन को रन करते हैं, यूज करते हैं, नॉट ओनली MCA नोटिफिकेशन बट फॉर द बेसिक डिसिप्लिन, जो चाहते हैं कि सिस्टम जो है पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज हो रहा है, क्या मॉडिफिकेशन हुआ, क्या डिलीशन हुआ, क्या एग्जैक्ट बिहेवियर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी रिकॉर्ड करने के, उसको मेंटेन करने के लिए काफी ऑर्गेनाइजेशन जो है एडिटलॉग वाला एप्लीकेशन भी यूज कर रहा है अभी। सो अगर आपका लाइसेंस जो है अपग्रेडेड नहीं, लाइसेंस अगर इनएक्टिव है तो इमीडिएटली उसको एक्टिव कीजिए, रिन्यू कीजिए, मनीष जी आपको हेल्प कर देंगे। एंड उसमें लाइसेंस को एक्टिव करने के बाद, रिन्यू करने के बाद 2.1 रिलीज को डाउनलोड करें वेबसाइट से, मैं उसको भी शो कर दूंगा। एंड अगर आप 2.1 में हैं ऑलरेडी तो आपको बस खाली एडिटलॉग वाले EXE को डाउनलोड करना होगा। अगर आपका लाइसेंस एक्टिव है बट आप लेटेस्ट रिलीज में नहीं है तो आप लेटेस्ट रिलीज में आइए और 2.1 रिलीज को डाउनलोड कर लें और उसको रन करते हैं। बहुत ही सिंपल बेसिक जो EXE को रन करते हैं एंड डे 1 से कंप्लाइंट हो जाइए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। जिस हिसाब से ऑपरेशन आप अभी भी कर रहे हैं वैसे ही करने की जरूरत है। एंड आप एडिट लॉग और नॉन एडिट लॉग वाला जो EXE दोनों को आप साथ साथ चला सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो भी हम देखेंगे। एंड आपका लाइसेंस अगर एक्टिव है, अपग्रेड इज फ्री विद एन एक्टिव TSS सब्सक्रिप्शन। इनएक्टिव अगर है, एक्टिव नहीं है TSS, तो पहला है आपको लाइसेंस को रिन्यू करना होगा, आना होगा। यही चीज आपके कस्टमर के लिए भी है और आपके लिए भी है, दोनों चीज। तो अब कैपेबिलिटी देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन मैंने कर लिया है कि कैपेबिलिटी क्या होना चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, और मतलब ब्रॉड एस्पेक्ट क्या है। तो उसको मैं आपको इमीडिएटली जो है एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी कि एप्लीकेशन के अंदर आपको कैसे इसको चेक कर पाएंगे आप ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप अगर आप देखना चाहते सॉरी एप्लीकेशन को जज करना चाहते हैं कि एडिट लॉग को मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे देखना है। तो मैं स्विच करूंगा टैली के अंदर। उससे पहले आई विल ट्राई टू शो यू वन थिंग। सॉरी, यस, यस, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल होगा आपको। अब इमीडिएटली आपको क्या करना है, यस विजिबल है। इमीडिएटली क्या करना है कि टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद डाउनलोड्स में आना है। डाउनलोड्स के आने के बाद आपको इमीडिएटली जो है ये 2.1 रिलीज का EXE दिख रहा होगा। ये नॉर्मल EXE है, टैली प्राइम 2.1। तो अगर आप टैली प्राइम में अभी है नहीं, ERP में है, तो और आपको दोनों काम करने हैं, टैली प्राइम 2.1 में भी काम करना है और 2.1 एडिट लॉग में भी काम करना है। सो जाहिर सी बात है आप सर दोनों कंपनीज को देखते हैं, मतलब जो कंपनीज एडिट लॉग में नहीं है वो भी कंपनीज आप हैंडल करते हैं, जो एडिट लॉग में आएंगी कंपनियां तो उसको भी हैंडल करेंगे। तो दोनों EXE को आपको डाउनलोड करना होगा। तो 2.1 देख रहे हैं यहाँ पे एडिट लॉग वाला लिखा हुआ है, 2.1 एडिट लॉग। तो इसको डाउनलोड करेंगे, ये EXE इंस्टॉल हो जाएगा। रन कर दीजिए। चलने के बाद आपके सिस्टम में इस प्रकार पे ये दिखाई देगा। एक तो टैली प्राइम वाला नॉर्मल वाला जो है अभी जो जिसको बहुत सारे आप में से यूज भी कर रहे होंगे, और जो एडिट लॉग होगा उसका आइकन ऐसे दिखेगा, दिस विल लुक लाइक दिस ओनली। EL मींस दिस एडिट लॉग एप्लीकेशन। सो इसको रन करेंगे और आप काम चालू करेंगे। तो बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए यही दोनों चीज के रिक्वायरमेंट है। वंस इट इज डन, तो जैसे नॉर्मल आप टैली ओपन करते हैं, आप काम करते हैं। अंकित जी एक चीज और बता दें बीच में। यस सर। आपने कहा एडिट लॉग एंड नॉन एडिट लॉग, साथ ही साथ ERP 9 भी चलाना पड़ेगा कुछ लोगों को, तीनों मोड पे चलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
सर को एग्जिस्टिंग में आप चला सकते हैं उसको भी। अगर आप ERP को भी आप रन करना चाहते हैं तो ERP को भी आप चला सकते हैं सर। मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट। Yes. ऑलरेडी सिर्फ ERP 9 है। सर देयर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज दैट हमने कोएग्जिस्टेंस क्रिएट कर रखा है। टेकिंग द सिनेरियो, अगर कोई ओनर है जिनकी 4 कंपनीज है और उस पे सिर्फ एक पे एडिट लॉग एप्लीकेबल है, तो वो दोनों एप्लीकेशन एक ही सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और टैली प्राइम होना चाहिए सर 2.1 बलवंत जी, वर्जन लेना पड़ेगा। बलवंत जी, मैं स्ट्रेट आपने क्वेश्चन मुझे टैली ERP9 बोला है तो सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं भी दोबारा से पूछ रहा हाँ जी हूँ। सर प्लीज। जैसे आज की डेट में सिर्फ ERP9 है, मान लो सपोज मेरे पास ही ERP9 है, मैंने रिन्यू जान के नहीं कराया, क्योंकि रिन्यू कराते ही वो प्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। और हर तरह का क्लाइंट होता है सीए के पास, कोई प्राइम में जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता। अब इशू हो जाता है डेटा या नॉन प्राइम से ERP9 का हमारे यहाँ कन्वर्ट हो गया 9, फिर वहां जाके कन्वर्ट कर, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अभी प्राइम वाले कम है, तो इसलिए जो प्राइम वाले आते हैं उसको प्राइम में कर लेते हैं। तो इशू ये है कि जैसे ही हमने 2.1 डाउनलोड किया, हमारा ERP9 जो कन्वर्ट होकर प्राइम में हो जाता है रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन के बाद। उसको कैसे हैंडल करना है, पहले स्टार्टिंग से बताएं। हम 10-15 मिनट ऐड कर, मतलब एनहांस कर लेंगे टाइमिंग, कोई इशू नहीं है। तो सर आंसर इज दैट कि जो गेटवे लाइसेंस होता है लाइसेंस सर्वर का, वो हमने 2.1 के साथ कोएग्जिस्टेंस दे रखा है। यानी आप अपना जो टैली ERP9 लाइसेंस चला रहे हैं उसको आपको रिन्यू करना पड़ेगा लाइसेंस रन करने के लिए, कोएग्जिस्टेंस के लिए। और आप टैली प्राइम नॉर्मल वर्जन और टैली प्राइम एडिट लॉग दोनों चला पाएंगे। हमें तीनों चलाने हैं। तीनों चलाने हैं। हाँ, तीनों भी मतलब आपके पुराने गेटवे के ऊपर चल जाएगा सर। लेकिन क्योंकि हमने ये फंक्शनलिटी भी चेक नहीं की है, तो वी वुड कम बैक विद द राइट आंसर। क्योंकि अभी ये जो फंक्शनलिटी है कोएग्जिस्टेंस, वो आपका इसके थ्रू है 2.1 के गेटवे के थ्रू। सतीश जी आंसर दे पाएंगे। हाँ सतीश जी, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। बलवंत, इनकी जो क्वेरी है ना, वो इसका ठीक से जवाब मुझे भी नहीं पता। इनको तीनों ही लाइसेंस चलाने होंगे, बिकॉज ये सीए फर्म है। इनके पास एडिट लॉग वाली भी कंपनीज होंगी, नॉन एडिट लॉग वाले भी टेली प्राइम के भी क्लाइंट्स होंगे, और टेली ERP वाले क्लाइंट्स भी होंगे। तो इनको तीनों के तीनों लाइसेंस, तीनों के तीनों वर्जन इकट्ठे चलाने होंगे ऑन द सेम लाइसेंस। ये टेक्निकली चेक कर लेना ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, और क्या इनडेफिनेटली ये पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि सीए ऑफिस की मेजर रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, करेक्ट। सो मतलब मैं हाफ पार्ट अभी आपका मेरे तरफ पेंडिंग है, तो वी विल रिवर्ट यू सर। मैं अभी इमीडिएटली थोड़ा ट्राई कर रहा था तो चेक करने के लिए। तो 3 थिंग्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। तो मेरा ERP भी अभी है, आप देख रहे हैं, और मेरा एडिट लॉग भी चालू है सेम सीरियल पे। वो तीनों चलेगा। पॉइंट इज दैट क्या ये इनडेफिनेटली चलेगा? We'll come back to you. Correct. So answer, Ankit, what we are saying, the answer to this question requires कि आप लाइसेंस चल गया, लेकिन टेक्निकली जब हम इसमें काम करने लगेंगे तो क्या ये हैंड होल्ड कर पाएगा आगे? That is the answer we need to answer. Only taking license is not the answer. सतीश जी, इसका जवाब मैं आपको अलग से दे दूंगा एक बार टेक्निकली इसको वेरीफाई करके, then you can pass on the message to all your colleagues. ठीक है। Yes, thank you. So to continue where I left, मेरा एडिट लॉग वर्जन जब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और एडिट लॉग में मेरे को कंटिन्यू रखना है काम को। सो बिहेवियरल कोई चेंज नहीं है। जैसे आपने देख रहे हैं कि मैं एक से डाउनलोड किया, मेरा कंपनी को मैंने लोड किया, और मेरे को कुछ क्रिएट करना है, कुछ अल्टर करना है, कुछ वाउचर बनाने हैं, तो वैसे ही है। फीचर में कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या है कि जो क्वेश्चन है कि MCA ने कहा है कि जो लेजर में बना रहा हूँ, जो वाउचर में बना रहा हूँ, जो लेजर मास्टर बना रहा हूँ, आइटम मास्टर बना रहा हूँ, तो उसमें अगर चेंज होगा क्या ये रिकॉर्ड करके रख पाएगा? क्या ये मैं देख पाऊंगा एज ए ऑडिटर, एज ए कंपनी ओनर? तो उसको कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे हमने ये फंक्शनलिटी दिया है। तो अगर सिंगल मोड में देखना है आपको एक वाउचर के अंदर जाके, तो उसको हम ये कैपेबिलिटी को यहाँ पे दे रहे हैं कि आप डेबुक में जाइए। डेबुक में जाने के बाद लेट्स से मैं एक वाउचर में जा रहा हूँ,
जिसमें देखना है मुझे कि इसमें कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं डिटेल्ड में जाऊंगा, उसको ओपन करूंगा उस वाउचर को। उसके बाद राइट हैंड साइड में मेरे पास एक ऑप्शन मिल रहा है रिलेटेड रिपोर्ट्स। तो रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाऊंगा, जाने के बाद मुझे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऑल्ट क्यू शॉर्टकट है, तो ये है एडिट लॉग। एडिट लॉग स्क्रीन में आऊंगा, देन मुझे ये हिस्ट्री मिल रहा है इसका कि ये वाउचर तो क्रिएट हुआ था 28 तारीख में 12:46 में। इसके ये क्रिएट हुआ था, उसके बाद जो है 28 तारीख में ही ये अल्टर्ड हुआ है। क्या अल्टर्ड हुआ इसको देखने के लिए मेरे को जाना होगा अंदर उसके डिटेल में, और यहाँ पे देखेंगे ये वर्जन 1 है। 28 मार्च 12:46 में ये अल्टर्ड हुआ है। ये क्रिएट हुआ था 28 मार्च 12:47 में ये अल्टर्ड हुआ है। क्या अल्टर्ड हुआ है? ये हुआ है कि जो एलिमेंट्स इसमें चेंज हुआ है उसको भी हम यूजर को थोड़ा और इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको हाईलाइट कर दिया है अलग कलर कॉम्बिनेशन में। एक रेड कलर में हमने हाईलाइट करने की कोशिश किया है। तो अमाउंट 200 था, 400 हो गया है वैल्यू के टर्म्स में, और क्वांटिटी जो था वो 1 था 2 हो गया है। ऐसे करके जहां जहां इंपैक्ट होगा उसको हमने रेड में हाईलाइट कर दिया है, तो यूजर इमीडिएटली इसमें समझ जाएगा ये चेंज हुआ है। और F12 के अंदर भी और कुछ हम शॉर्टिंग के लिए एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि आप उसमें जाके अगर खाली अल्टर्ड वैल्यू को देखना है तो यस कर दीजिए, उसको देख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे कुछ यस नो हुआ है उसको देखने के लिए यस करके आप उसको फिल्टर कर दीजिए। फिल्टरिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सिंपल तरीका यहाँ पे हम यूजर को दे रहे हैं। ये हो गया सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने के लिए। तो लेकिन अगर किसी का डेटा देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मतलब हो सकता है किसी का हजार का भी ट्रांजेक्शन है, किसी का 2000 है, 3000, तो एक एक करके देखना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से हम एक और ऑप्शन दे रहे हैं डेबुक के अंदर। आप डेबुक के अंदर बेसिस ऑफ वैल्यू में आके आप एक फिल्टर, एडवांस फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप ये शो रिपोर्ट फॉर में आके एंटर जब करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप खाली ऑल्टर्ड वाउचर को फिल्टर कर पाए फ्रॉम लॉन्ग लिस्ट। आप उन लिस्ट को वेरीफाई कर पाए, देख पाए कि कौन कौन से वाउचर्स हैं जो अल्टर्ड है या डिलीटेड है। तो उसको देखने के लिए आप सिंपल आइए ऑल वाउचर्स के अंदर, अल्टर्ड वाउचर में चले जाइए। अगर आपको डिलीटेड वाउचर्स को भी देखना है तो उसको भी यस कर दीजिए, करने के बाद कंट्रोल A कर दीजिए। तो फ्रॉम ए लॉन्ग लिस्ट यू आर नाउ लैंडेड ऑफ the list where modification and deletion and cancellation has happened। तो सिंपल परव्यू में आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आप ये इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि बस इसी में ही मेरे को जाना है, देखना है कि ये क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या वर्जन है इसके अंदर। तो जैसे हमने एक अल्टर्ड देखा था, एक डिलीटेड के अंदर जाएंगे तो डिलीटेड का जो है ये कह रहा है कि ये अल्टर्ड हुआ है अपना जो अल्टर्ड हुआ है वो हुआ है ये चीजें जो है अल्टर्ड हुई है। देन डिलीटेड जो हुई है, डिलीटेड हुई है 27 मार्च में 27 मार्च में हुई है और 7:56 में हुई है। एंड डिलीट जो है ये हो गया है 11:20 में 28 तारीख में। तो डिलीटेड का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट आपका उससे पहले वाला जो वर्जन में क्या क्या चीजें था वो आपके सामने है। तो ये सारी चीजें जो है, जैसे हमने कहा था, हमने डिस्कशन किया था कि जो ट्रांजैक्शन के अंदर जो चेंज पॉसिबिलिटी है चेंजेस का या चेंज होंगे, तो उसका जो एक रिकॉर्ड, एक चेंज जो है सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन रहेगा। तो एडिट लॉग की कैपेबिलिटी यही है। जो नॉर्मल आपने यूज किया होगा टैली प्राइम, तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं था कि क्या आपने अल्टर कर दिया, क्या वैल्यू कर दिया, कौन सी क्या चीज डिलीट कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये सब चीजें नहीं रिकॉर्ड में रहता था। तो एडिट लॉग का जो डिमांड है यही है और इसी चीज को हम डिलीवर कर रहे हैं। सिंगल मोड का आपने देखा, बल्क मोड में भी देखा। आप मास्टर्स के अंदर अगर आप जाके देखना चाहते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने मास्टर को फिल्टराइज करने के लिए भी ऑप्शन दिया है। लेजर्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आने के बाद आप लेजर्स में आएंगे, फिर वही बेसिस ऑफ वैल्यू में जाके अगर बल्क में आप करना चाहते हैं तो अल्टर्ड में जाएंगे और डिलीटेड को भी यस करके आप कंट्रोल A करेंगे। अंकित जी तो, थोड़ा सा फास्ट हो गया। यस आपको चीजें याद है ना, और कमांड से चलती हैं, हमें तो सोचना पड़ा कहाँ गया। नहीं सर, मैं बता देता। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में है, लेजर में, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बाद लेजर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट्स फिर लेजर्स। अगर लेजर्स में जाना, लेजर्स में चेक करना है, दोनों यहाँ पे भी है। स्टॉक आइटम में अगर मेरे को
आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा स्टॉक आइटम है जिसमें चेंज हुआ है स्टॉक आइटम मास्टर में, वो भी ऑप्शन है यहाँ पे। और लेजर मास्टर के अंदर लेजर में जाने के बाद बेसिस ऑफ वैल्यू एक बटन है, इसको याद रखें। कहाँ है बेसिस ऑफ वैल्यू, कहाँ पे? अच्छा, बेसिस ऑफ वैल्यू, ओके, राइट। बेसिस ऑफ वैल्यू में जाने के बाद सेम बिहेवियर है जहाँ पे हमने डे बुक के अंदर देखा था कि लॉन्ग लिस्ट है, उसमें से हमें केवल अपना अल्टर्ड में ही हमें वो देखना है, हमारा ऑब्जर्वेशन अल्टर्ड में ही जाएगा। सो अल्टर्ड को हम करें और इंक्लूड डिलीटेड लेजर्स को भी यस कर दें। यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, अगर डिलीट को भी देखना है तो कंट्रोल ए कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है। सो मैं 2 में से अगर देखूं कि बॉस इसमें क्या चेंज है, इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, तो उसको ओपन करूं डिटेल में, फिर रिलेटेड रिपोर्ट्स पे आ जाओ। राइट हैंड साइड रिलेटेड रिपोर्ट्स है, तो फिर ऑल्ट क्यू करूं, फिर ये जो है ये ऑप्शन दे रहा है कि ये क्रिएटेड हुआ था 28 में 11:27 में, अल्टर्ड हुआ 28 तारीख में 11:28 में। तो अल्टर्ड क्या हुआ उसका आप देखेंगे, हम फिर हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे रेड कलर में, रेड कलर कॉम्बिनेशन में। पहला वैल्यू ये था जोन्स आईटी, यहाँ पे जोन्स आईटी सोल्यूशन हो गया इस मास्टर लेजर मास्टर का नेम। तो जैसे नेम हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे भी कैप्चर कर रहे हैं कि ये यहाँ पे ये बिहेवियरल चेंज है इसके अंदर। सो एमसी के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चीजें डिजाइंड है। आपको बस यही जो चीज है कि आपको कैसे इसको ट्रैक करना है, कहाँ पे ट्रैक करना है, कहाँ से ट्रैकेबल इजी है। यूजर इंटरफेस बहुत इजी रखा है हमने। डे बुक के अंदर वाउचर मास्टर्स वाउचर्स ट्रांजेक्शन को चेक करना है और मास्टर्स को चेक करने के लिए चार्ट अकाउंट से। देन दूसरा परिव्यू है कि कंपनी ये कब फॉर्मेशन, कब ऑडिट लॉग में चालू हुआ है, और इसको देखने के लिए आपको एडिट लॉग में आना होगा। कंपनी में एडिट लॉग में जब क्लिक करेंगे और उस कंपनी में डिटेल लोड करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि इसका पूरा हिस्ट्री है कि ये 27 मार्च में ये कंपनी माइग्रेट होकर एडिट लॉग में आया है। 27 तारीख में 7:54 में ये एडिट लॉग जो है डेटा फ्रॉम ईआरपी या अर्लियर वर्जन से आया है, ये डेटा यहाँ पे माइग्रेट होके। दूसरा फिर जो क्या है, ये कह रहा है कि 27 तारीख में ही 8:02 में ये डेटा मूव हो गया है। कंपनी जो है, कंपनी डेटा मूव्ड फ्रॉम टैली प्राइम एडिट लॉग। सो फिर जो है आप देख रहे हैं कि कंपनी डेटा मूव फ्रॉम टैली प्राइम, मतलब नॉन एडिट लॉग से मूव होके आया है ये। तो ऐसे करके जितने बार भी ये कंपनी नॉन एडिट लॉग में जाके एडिट लॉग में आएगा, उसका एक हिस्ट्री बनता चला जाएगा इसमें, और डेट और टाइम के हिसाब से आपको ये सब हिस्ट्री दिखेगा। एंड इसमें अगर मैं फर्दर आपको इसमें दिखाऊं, जैसे हमने कहा था कि इसमें ये ऑप्शन यूजर के पास नहीं रहेगा कि इस कंपनी में ये अल्टर करके ये फीचर जो है एडिट लॉग वाला जो फीचर है इसको डिसेबल करते हैं। कहीं पे भी आप देख नहीं पाएंगे कि ये ऑप्शन जो है यूजर के एंड पे है कि वो उसको डिसेबल और एनेबल करते हैं। F12 में भी देख लीजिए, F12 में कहीं पे भी एडिट लॉग वाला फीचर जो है नहीं मिलेगा। और सिमिलर अगर कंपैरिजन में दिखाऊं आपको कि लेट्स से मैं गणेश एंड ट्रेडिंग को जो है स्टार्ट कर देता हूं, यहाँ पे बंद कर देता हूं, और मेरा नॉन एडिट लॉग वाली कंपनी इधर है। नॉन एडिट लॉग की कंपनी मेरे पास है, जो नॉर्मल टैली प्राइम जो आप यूज कर रहे हैं, उसमें मैं एडिट लॉग वाली गणेश एंड ट्रेडिंग को ओपन करता हूं। तो ये क्या पॉपअप दे रहा है, ये जो है बेसिक आपको यूजर को यही चीजें समझानी है कि अगर बाय मिस्टेक अगर ये आप एडिट लॉग कंपनी को नॉन एडिट लॉग में ओपन कर रहे हैं, अगर इस तरीके से कोई मैसेज आपको पॉपअप करे तो आप समझ जाइए ये डेटा जो है एडिट लॉग से मूव होकर नॉन एडिट लॉग में आ रहा है। अगर आप नॉन इंटेंशनली कर रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं है, तो उसको बंद कर दें, अवॉइड कर दें और उसको ओपन ना करें। तो ये क्या कह रहा है, माइग्रेशन विल मेक द कंपनी डेटा कंपैटिबल विद दिस रिलीज। तो एडिट लॉग वाली जो कंपनी का डेटा है वो नॉन एडिट लॉग से एडिट लॉग में कंपैटिबल हो जाएगा अगर आप लेके आ रहे हैं। द एडिट लॉग फीचर विल रिमेन एनेबल्ड फॉर द कंपनी। जो एडिट लॉग वाला फीचर जो था आपके एडिट लॉग में एनेबल्ड, तो नॉन एडिट लॉग में भी वो एनेबल्ड रहेगा। तो हम ये मतलब इस फीचर को एनेबल्ड ही रख रहे हैं डिफॉल्ट। एंड ए लॉग विल बी क्रिएटेड टू रिकॉर्ड द माइग्रेशन फ्रॉम टैली प्राइम एडिट लॉग टू टैली प्राइम।
तो जो लॉग बना था पहले वो लॉग भी कंटिन्यू होगा उसमें। अगर आप उसको बंद कर देते हैं, यूजर अगर बंद कर देता है इस फीचर को, उसके बाद जो है ये एडिट लॉग नहीं बनाएगा, नहीं क्रिएट करेगा, और पहले के जो एडिट लॉग जो है वो रहेंगे, और जब आप दोबारा एनेबल कर देंगे वो कंटिन्यू होगा। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको इसमें माइग्रेट कर दे रहा हूँ। माइग्रेट करने के बाद आप सिंपल देखिए कंपनी में आके एडिट लॉग में, ये नॉन एडिट लॉग वाला मेरा EXE चल रहा है अभी आप देख रहे हैं, टैली प्राइम सिल्वर है ये नॉन एडिट लॉग वाला है। तो एडिट लॉग में मैं आ रहा हूँ, तो ये क्या मेरे को इमीडिएट मैसेज क्या दे रहा है कि ये जो है 31 तारीख में 3:45 में मेरे सिस्टम का डेट एंड टाइम कैप्चर हो रहा है। इसमें ये कंपनी डेटा मूव्ड फ्रॉम टैली प्राइम एडिट लॉग, ये क्लियर मैसेज मेरे को दे रहा है कि ये एडिट लॉग का डेटा आया है इसमें, इस सिस्टम में, ये मैसेज मेरे को दे रहा है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने कहा था कि अभी जो मैसेज मेरे को थ्रो किया था कि ये ऑप्शन जो है एनेबल्ड होगा नॉन एडिट लॉग में भी। तो एडिट आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिट लॉग जो है एनेबल एडिट लॉग यस हो रखा है, तो ये कंटिन्यू रहेगा एडिट लॉग का जो डेटा है एडिट लॉग में ही, नॉन एडिट लॉग में आने के बाद भी। अगर आप इसको नो कर रहे हैं कि आप चाह रहा है यूजर की जो एडिट लॉग का फंक्शनलिटी था ये वो बंद हो जाए नॉन एडिट लॉग की कंपनी में, तो यहाँ पे भी एक मैसेज देगा कि टैली प्राइम विल स्टॉप क्रिएटिंग अ लॉग ऑफ एक्टिविटीज सच एज क्रिएशन, अल्टरेशन एंड डिलीशन फॉर मास्टर एंड वाउचर्स। तो इसके बाद जो भी एक्टिविटी करेंगे वो उस मास्टर के अंदर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होगा या लॉग नहीं क्रिएट करेगा, या अगर वाउचर्स के अंदर कुछ कर रहे हैं तो उसका भी कोई भी इम्पैक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ अल्टरेशन, डिलीशन, कैंसिलेशन, वो उसको कैप्चर नहीं करेगा। और योर एग्जिस्टिंग लॉग विल बी रिटेन which can be viewed by enabling edit log again. Do you want to disable or disable edit log? ये जो मैसेज है फेयर मैसेज मिल रहा है। सो इसको देखते हुए फिर एक कंपनी जो है अपना एक्टिविटी को मतलब मूव ऑन कर सकता है। कहने का मतलब है हमने गलती से भी गलती ना होने का सारा प्रावधान जो है सब कुछ रखा है कि अननेसेसरी ये सब चीजें मिस्टेक ना हो। इसके बावजूद अगर कोई इंटेंशनली करेगा देन देयर इज नॉट एनीबॉडीज कंट्रोल। सो ये जो है बेसिक ब्रॉडली अगर देखें आप अंकित जी, यस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गलती से माइग्रेट हो गया नॉन एडिट लॉग से एडिट लॉग वाली नॉर्मल प्राइम में, तब भी वो लॉग क्रिएट होता रहेगा जब तक कि हमने कंपनी को अल्टर करके अनेबल लॉग को डिसेबल नहीं किया। एब्सोल्युटली। सो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ वो एडिट लॉग प्राइम से नॉर्मल प्राइम में आ जाएगा बस। ओके, यस। सो ब्रॉडली मैंने ये मतलब आपको समझाने की कोशिश किया जो MCA की गाइडलाइन में है। कुछ और चीजें देख लेते हैं। Will the user able to disable the edit log capability in Tally Prime edit log product? No. Starting some ये चीज को हाईलाइट करें, ये ऑप्शन नहीं है यूजर के पास एडिट लॉग की कैपेबिलिटी के अंदर की डिसेबल और एनेबल कर पाए, लेकिन जरूर ये टैली प्राइम के नॉन एडिट लॉग वाला जो वर्जन है उसके अंदर हमने ऑप्शन दिया है। कैन द यूजर कंपेयर सेलेक्टेड वर्जन? यस। वर्जन जो है पहला वर्जन में क्या था जब क्रिएट हुआ था, दूसरा वर्जन में जो अल्टरेशन हुआ उसका क्या रहा, तीसरा में क्या रहा, चौथा में क्या रहा, वो सब यूजर कंपेयर कर सकता है। Easily track the edit log modification done to the masters and transactions. लेजर में क्या हो रहा है, लेजर ग्रुप में क्या हो रहा है, स्टॉक आइटम में क्या हो रहा है, सबको आप चेक कर सकते हैं। वैल्यू बेसिस और वैल्यू फिल्टर में जाके भी बल्क डेटा को भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, खाली अल्टर्ड को चेक कर सकते हैं, डिलीशन को चेक कर सकते हैं। प्रिंटिंग नहीं दे रहे हैं अभी। कैन वी यू प्रिंट द एडिट लॉग इंफॉर्मेशन ऑफ ए मास्टर ट्रांजेक्शन और ए मास्टर्स? Currently the product is not designed. अभी हम खाली MCA का जो इमीडिएट इम्पैक्ट जो हो रहा है चीजों को लेकर हमने डिजाइन किया है प्रोडक्ट को, फर्दर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। जैसे जैसे क्लैरिफिकेशन आएगा और सिंप्लीफाई होगी चीजें, हम इसको और इम्प्रूव करेंगे प्रोडक्ट के अंदर। नो द इम्पैक्ट ऑफ इंसर्ट डिलीशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन योर वाउचर नंबरिंग। डिलीशन हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, इस चीज को भी सिस्टम कैप्चर कर रहा है और आपको उसको अल्टरेशन के अंदर लाके थ्रो कर रहा है कि ये जो चीजें है ये इम्पैक्ट हुआ है। एडिट लॉग यहीं पर एक क्वेश्चन। यस सर। जनरली टैली में अगर हम ऑटोमेटिक वॉचर नंबरिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट रखते हैं, जनरली जैसे सेल में हम रखते हैं या परचेज को छोड़ के जनरली सब जगह रखते हैं, तो किसी और बैकडेटेड एंट्रीज रहती ही हैं
क्योंकि एक बार में सारी सेल एंटर होती हैं, फिर सारी परचेज एंटर होती हैं, फिर सेल बैंक हो गया, रिसीट हो गई, पेमेंट हो गई, खर्चे हो गए, वो 1 बाय 1 चलते रहते हैं और थ्रू आउट चलते हैं। करेक्ट। तो उस केस में आज की डेट में 31 मार्च 23 को हम बैठे हैं, अगर 10 जनवरी 23 का या फॉर दैट मैटर 1 जून 22 का कोई एंटर हम करते हैं वाउचर, तो उसके बाद के सारे जो वाउचर, सपोज हमने एक रिसीट पेमेंट रिसीट की एंट्री डाल दी, तो रिसीट वाउचर्स के सारे नंबर चेंज हो जाते हैं उसके बाद के, तो ये भी कैप्चर हो जाएगा वो अल्टर्ड में कैप्चर होगा सर। इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जब भी आप कंपनी को माइग्रेट करेंगे एडिट लॉग में, तो ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग को हम ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में करके दे रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया, एडिट लॉग वाली कंपनी में फर्स्ट डे से ही, कल से ही हम कोई रिसीट वाउचर एंटर करेंगे, पेमेंट वाउचर एंटर करेंगे, तो हमें मैन्युअली उसमें वाउचर नंबर फीड करना पड़ेगा। टेक्निकली यही है, अदरवाइज वो क्या होगा कि सारे जो इम्पैक्ट होगा जो फॉरवर्ड नंबर पे, वो अल्टर्ड में शो हो जाएगी। वो अल्टर्ड में शो हो जाएगा। हाँ, ऐसा ना हो, इस वजह से हम इसको वो कर रहे हैं। नहीं, ना हो वाली में एक बहुत बड़ा मनीष जी शायद आंसर दे पाएंगे। मनीष जी। हाँ जी, अंकित क्या क्वेरी क्या है एग्जैक्टली? सर कह रहे हैं कि हाँ सर, क्वेरी थोड़ा पूछ लीजिए। मैं बता देता हूँ, पलवन जी को मैं बोलूंगा थोड़ा वो भी अपना। सर जैसे ये फॉर्म्स में जो बुक रेटिंग करती हैं, या इवन अदरवाइज जो अकाउंटेंट्स पार्ट टाइम अकाउंट्स मेंटेन करा, पार्ट टाइम अकाउंटेंट्स आते हैं, क्योंकि हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी बड़ी कंपनी नहीं होती। लिमिटेड कंपनी भी साल के 50 वाउचर्स वाली या 10 वाउचर वाली कंपनी होती है, या 2, 4, 5, 10 लाख या 20, 50 लाख, 1 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनियां भी होती हैं, जिसमें कंपनियां, उनको जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है अगर वो फुल टाइम अकाउंटेंट रखें अपने यहाँ, ऑन जॉब ऑन रोल रखें। तो मान लो कोई अकाउंटेंट आता है, वीकली आता है या मंथली आता है, उसका क्या एंडेवर होता है, जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है तो पहले सेल चढ़ा दी, फिर परचेज एंटर कर दी सारी की सारी, और एक्सपेंसेस वाले जो जीएसटी को हिट कर रहे हैं वो वाले एंटर कर लिए। पेमेंट रिसीट्स वो बाद में करता है, और पेमेंट रिसीट करते हुए भी वो जो सामने आता जाता है करता जाता है, क्योंकि उसके पास जब मंथ में एक बार आएगा तो मंथ के पूरे डाटा है, डिटेल है, वाउचर्स भी हैं या बैंक से जो भी है, तो वो पहले उसको सेग्रीगेट नहीं करता डेट वाइज, जोन सा हाथ में आता है, क्योंकि टैली का फीचर है, कहीं भी एंटर करो अल्टीमेटली उसी जगह जाके फिट हो जाएगा। तो अगर रिसीट और पेमेंट वाउचर अभी तक तो क्या कर रहे थे, ऑटोमेटिक सिस्टम से नंबरिंग जनरेट होती थी। आज 31 मार्च 23 को हम बैठे हैं, सपोज रिसीट वाउचर 533 हमारे ऑलरेडी एंटर्ड है, आज पता चला 1 जून 22 का कोई रिसीट का वाउचर एंटर होने से रह गया, आज हम 1 जून 22 का बैकडेटेड एंटर करेंगे, गलती है रह गया, तो जब वो एंटर करते हैं तो 1 जून 22 का सपोज वो वाला वाउचर है 113 के बाद के 533 के 534 सारे वाउचर्स के नंबरिंग चेंज होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक है। समझ गया। हमने रिसीट वाउचर की कहीं कोई प्रिंट देना नहीं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है, हमारा इंटरनल ही है, लेकिन एडिट लॉग में तो वो एडिट हो जाएगा सारा, उसमें दिखाएगा लॉग एडिट लॉग में। एक दूसरा, अगर मैनुअल वाला फीचर लगाएंगे तो अगर ये कोई एंट्री छूट गई 1 जून पर, अगर बैकडेटेड एंट्री करेंगे तो उसका वाउचर नंबर क्या डालेंगे, तो मैनुअली तो सीरियली सारे एंटर्ड है। लेट मी आंसर यू। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ, जो मतलब हम लोग एडवाइस करते हैं कंपनीज में या हमने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सबसे पहले तो अंकित मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो जो टेली में जो नया फीचर आना था टू गिव द करंट नंबर इवन फॉर द बैकडेटेड वाउचर्स, वो एक्टिवेट इसी रिलीज में है या वो रिलीज नहीं, इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है, 3.0 में है, तो वो वाउचर नंबर 3.0 में पार्टली आंसर मिल गया सर, जब वो रिलीज आ जाएगा तो हो गया। पार्टली जवाब तो यही है, बिकॉज सर इसको इसलिए किया गया है इस सॉल्यूशन को, क्योंकि जीएसटी 1 जो होती है उसमें लोगों की वाउचर नंबरिंग ना कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, जहां पर भी थोड़ा सा इनडिसिप्लिन होता है। सारी चीजें बर्दाश्त हो जाएगी बट वाउचर नंबर इनवॉइस का बर्दाश्त नहीं होगा। सारी गलती है, एक बार रिसिप्ट का भी हो जाएगा, परचेज का भी हो जाएगा वाउचर नंबर, बिकॉज एनीवे इट इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब। परचेज का तो हमने मैन्युअली रखना ही होता है।
हम परचेज का तो हर कोई मैनुअल रखता है। हाँ अच्छा, फिर भी मैं इसका जो करंट सॉल्यूशन मैंने अपनी कंपनी में किया हुआ है हाँ जी वो मैं बता देता हूँ। रेसिप्ट्स के केस में या पेमेंट्स के केस में या कोई भी वाउचर, हम लोग पूरे साल भर वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रखते हैं और मंथली वाउचर नंबरिंग रखते हैं। मंथली वाउचर नंबरिंग रखते हैं तो उसमें हमने प्रीफिक्स सफिक्स मंथ वाइज लगाया हुआ है। तो अगर हमें कोई बैकडेट में वाउचर डालना भी होता है तो पहली बात तो हम उसको लास्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ डलवाते हैं, सो दैट द नंबरिंग डज नॉट गेट डिस्टर्ब। सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हो मैं तो ये भी नहीं, मैं तो ये बीच में डालना चाहता हूँ। नहीं सर, अगर बोला किसी की 10 जून को पेमेंट दी है या पेमेंट आई है 10 जून को, हाँ तो 10 जून को डालनी होगी। तो बैंक से तो इसके ठीक लिए है, मान लो कोई कैश ही पेमेंट है। हाँ, तो इसका हमने एक सॉल्यूशन जो बनाया हुआ है, हमने एक वाउचर टाइप अलग बनाया हुआ है जिसका जर्नल का, जिसके अंदर हम कोई भी बैक डेटेड वाउचर एंट्री इमरजेंसी वाले सिर्फ उसमें इमरजेंसी एंड लॉजिकल वाले उसमें जाकर हम डाल देते हैं। बिकॉज जर्नल के ट्रांजैक्शंस के अंदर भी आप रेसिप्ट्स, पेमेंट्स कर सकते और हैं। परचेज और सेल हर तरीके की ट्रांजैक्शंस डाल सकते हैं, राइट। और उसके अंदर हमने वाउचर नंबरिंग नन रखी हुई है। दीज आर फॉर द इमरजेंसी एंड उसमें वाउचर नंबरिंग क्या कर रखी है? नन कर रखे, नो नंबरिंग। हालांकि अच्छा। चाहो हाँ उसमें या तो मैनुअल नंबरिंग करनी पड़ेगी या नो नंबरिंग करनी पड़ेगी। एंड दीज आर द एक्सप्लेनेबल ट्रांजैक्शंस, बिकॉज अब देखिए अकाउंटिंग जब आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स होंगी ही होंगी, होंगी तो जेन्युइन एज मिस्टेक्स है। एंड प्रोवाइडेड और बैकडेटेड वाउचर एंट्री ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट या कोई भी आदमी जाके पकड़ता ही है। इफ इट इज एक्सप्लेनेबल देन इट हैज गॉट नो रीजन टू जज कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़। उसका बैन थोड़ी है कि बैकडेटेड कर ही नहीं सकते हैं। बैन कुछ नहीं है, बैन तो नहीं है, बट क्योंकि सबसे बड़ा एक इशू है, I mean, no one should expect chartered accountant to go and make entries. तो वो तो एक्स्ट्रा विजिलेंट होके करेगा। तो अब ये थोड़ा जरा ज्यादा वाला मैंने एग्जांपल ले लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़ देते हैं, बड़ा सीनियर लेवल का अकाउंटेंट जो है, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि तो एंट्री करो, तो कॉस्ट ही बहुत बढ़ जाएगी। तो जो एंट्री करेगा वो अकाउंटेंट ही करेगा, अकाउंटेंट भी नहीं करेगा, जूनियर अकाउंटेंट करेगा, अकाउंट ट्रेनी करेगा, और वो गलतियां करेगा ही करेगा, करेगा सर। इसमें और उसकी एक तो करेक्शन भी होगी। हाँ, ये एक तो पॉइंट हो गया। मैंने आपको बैकडेट का एक फ्यूचर सॉल्यूशन भी बता दिया और एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस भी बता दी। 2 सॉल्यूशन बता दी हम लोग। वाउचर नंबरिंग परचेज के केस में, पेमेंट और रिसिप्ट के केस में मंथली रखते हैं विद द प्रीफिक्स एज द मंथ और द नंबर ऑफ द मंथ, और तो उससे हमारी नंबरिंग कंट्रोल में रहती है और सारी मतलब हम लोग वी कीप द ठीक है, बुक्स तो सेफली। मैं इसका सिंपल सा आंसर थोड़ा सा जो मेरे को समझ आया वो मैं बता देता हूँ। एक तो हमने मंथली कर दिया, दूसरा इशू सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की डेट एंट्री का है। क्योंकि अगर कोई बैंक ट्रांजैक्शन है वो आप 10 जून को करो या 31 मार्च को करो, हार्डली मैटर्स। बैंक में पैसा आया रहेगा ही, छूट गई, एंट्री आज कर दी। पर कैश की एंट्री हमें सेम डेट को चाहिए, तो उसके लिए आप जर्नल वाउचर की बात कर रहे हैं। हालांकि हम लोग जनरली प्रिस्क्राइब मतलब एडवाइज नहीं करते कि पेमेंट और रिसीट एंट्री जर्नल के थ्रू जाए। हम कहते हैं पेमेंट की एंट्री पेमेंट से जाए, रिसीट की एंट्री रिसीट से जाए। तो बट सर अगर ऐसा है, चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों चीजें नहीं हो पाएगी तो हमें कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो हमें जर्नल से करना पड़ेगा। कोई कैश की एंट्री अगर छूट गई है पेमेंट रिसीट की, बाकी बैंकिंग की है, बैंकिंग चैनल से कुछ भी रिसीट पेमेंट आया, सिर्फ हमारा रिकंसिलेशन में रह सकता है, डेट कुछ भी हो सकती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिपोर्ट्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जून की जगह मार्च में एंटेड है, वो भी कर सकते हैं, या जून 10 की जगह 30 जून में एंटेड है, वो भी कर सकते हैं। तो वहां तक तो पॉसिबल है। तो एक सिर्फ कैश पेमेंट और रिसीट का इशू रह गया। बाकी सर इसमें ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक एडवाइस देना जरूर चाहूंगा। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ ठीक है। Yes, yes. इसमें जो है वी विल हैव टू एजुकेट मोर टू अवर अकाउंटेंट्स टू मेक द राइट एंट्रीज, राइट, क्योंकि अब थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। अभी इसके इफेक्ट्स क्या क्या निकल कर आएंगे वो तो अगले 1 महीने में हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस और ईच एंड एवरी चेंज इज गेटिंग कैप्चर्ड इनटू द सिस्टम। अभी जैसे अंकित ने आपको दिखाया, इवन वर्जन चेंज भी उसमें कैप्चर हो रहा है, इवन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द डाटा इज आल्सो गेटिंग कैप्चर्ड। तो जुगाड़ का स्कोप बहुत कम है ही नहीं, समझ लो।
गॉट इट सर, गॉट इट। और लॉ की रिक्वायरमेंट है, पूरी तो करनी पड़ेगी। आप कुछ लॉ वाली बात बताना चाह रहे थे मनीष जी? हाँ नहीं, मेरा तो बस यही पॉइंट था अच्छा। जो मैंने बता दिया आप नहीं, लोगों वो को। शुरू में बात हो रही थी ना, जो अंकित जी कह रहे थे कि फिर आपने कहा था कि लॉ वाली बात नहीं बता पाएंगे, तो वो अगर कुछ आपने एडिशन करना हो तो। नहीं, लॉ का तो ठीक है सर, दिस लॉ इज वेरी मच क्लियर, और उस हिसाब से तो आवर सॉफ्टवेयर इज वेरी मच रेडी। और इसमें फीचर्स तो एज सच रिपोर्ट्स ही हैं, और अल्टीमेटली इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट द ओनली थिंग व्हिच वी आर सजेस्टिंग दैट we will have to be very disciplined in making the entries into Tally from now onwards. राइट। सो थैंक यू। आई थिंक और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं तो उसको मैं क्विकली थोड़ा गो थ्रू कर देता हूँ। सो सिंगल रिपोर्ट के अंदर नहीं है सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग से कहा है, कोई सिंगल रिपोर्ट के अंदर हम एडिट लॉग के सारी रिपोर्ट्स को नहीं डिलीवर कर रहे हैं अभी करेंटली। सो आप डे बुक से जाके जो वाउचर्स की जो अल्टरेशन है उसको बेसिस ऑफ वैल्यू से जाके आप ट्रैक कर पाएंगे, और मास्टर्स को जाके चार्ट ऑफ अकाउंट से ट्रैक कर पाएंगे। हालांकि डिमांड यही है कि एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मिल जाए, तो उसको फर्दर हम इवैल्यूएट करेंगे और ट्राई करेंगे कैसे डिलीवर करें। यस, सो हमने रिलीज कैसे माइग्रेट हुआ है उसको देखा है, नॉन एडिट लॉग से एडिट लॉग, एडिट लॉग से एडिट लॉग, और किस रिलीज से भी डेटा आ रहा है उसको भी हम देख पाएंगे कंपनी में जाके एडिट लॉग ऑप्शन में। एंड विल एडिट लॉग एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन एंड मास्टर्स कैन बी एक्सचेंज वाया सिंक और इंपोर्ट। So the edit log data will not get exchanged via sync or import. The edit log will be logged only for an on-premises data. Users may sync import the data to Tally Prime from any third-party software. So Tally cannot provide a reliable edit log for such master transaction in Tally. The data exchanged will show the status as created due to sync or import accordingly. So इसमें क्या है कि अगर आप डेटा सिंक से लेके आ रहे हैं टैली में, ये इंपोर्ट से लेके आ रहे हैं, तो टैली में ये शो होंगे कि ये जो है ये डेटा सिंक से आया है, ये इंपोर्ट से आया है। एंड उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर वो मेंटेन होंगे। उससे पहले की जो भी चेंजेस हुए होंगे दूसरे एप्लीकेशन में उसका कोई लॉग नहीं मेंटेन रहेगा। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होंगी, मॉडिफिकेशन होंगी, वो ट्रैक होंगी टैली प्राइम में। अंकित, इसमें क्वेश्चन है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस, ये जो सिंकिंग के थ्रू जो डाटा आ रहा है और इंपोर्ट जो हो रहा है, इसमें यूजर का नाम कैप्चर होगा या सिर्फ यही लिखा आएगा दैट इट इज सिंक्ड और इंपोर्टेड? सिंक्ड और इंपोर्ट होगा सर। यूजर किसने ये किया उसका नाम नहीं आएगा? आई थिंक अगर कोई पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू हो रहा है, वो यूजर लॉक्ड है। बलवंत जी आप थोड़ा सा इसमें बता पाएंगे? आई हैव नॉट टेस्टेड इट। मैंने भी टेस्ट नहीं किया। मनीष जी, मेरा भी इसमें एक क्वेश्चन है, बलवंत जी को आंसर देने देते पहले। यस, बलवंत जी। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी जो क्वेश्चन जो अंकित जी ने बताया कि सिंक या इंपोर्ट के बाद पुराने लॉग खत्म हो जाएंगे, ये ऐसा मेरे को फील हुआ आपने बताया। नहीं, मेरा को पॉइंट ये है, जब डाटा इंपोर्ट होता है या सिंक होता है, इंपोर्ट से मतलब क्या हुआ कि हम किसी दूसरे, सपोज अब मेरे को ऑडिट करनी है, हम क्लाउड बेस्ड नहीं है, मेरा क्लाइंट बैठा है पटेल नगर में, मैं सरस्वती अकाउंटेंट्स की ऑडिट करनी है सपोज, तो एक तो ऑप्शन है कि मैं सरस्वती अकाउंटेंट्स के पास जाके वहां फिजिकली जाऊं और वहां पे टैली चेक करूं और ऑडिट करूं। दूसरा ऑप्शन है कि वहां से टैली का डाटा जो है मेल के थ्रू मंगा लूं, अपने सिस्टम पे इंपोर्ट करूं और यहाँ चेक करूं और वापस एक्सपोर्ट कर दूं, ये चेक हो गया, और विद सजेस्टिव मॉडिफिकेशन या एक आधी छोटी मोटी अगर मॉडिफिकेशन है तो मैंने ही कर दी और आपके पास भेज दिया। यहाँ पर अब दो बातें हैं, एज एन ऑडिटर आई एम नॉट अलाउड टू मॉडिफाई माई सेल्फ, कंपनी करेगी, पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। पहले मैं मान लो सपोज एक ह्यूज डेटा मैं चेक कर रहा हूँ, 10,000 एंट्रीज हैं उसमें, उनमें से 10 एंट्री में मेरे को कुछ चेंजेस सजेस्ट करने हैं, पहले मैं नोट डाउन करूं। ये 10 मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, मान लो 100 कर रहा हूं, तो पहले तो मैं 100 नोट डाउन करूं सजेस्टिव चेंजेस, फिर आपको बताऊं डेटा के साथ, फिर वहां से आप 100 सजेस्टिव चेंजेस चेंज करके वापस मेरे पास भेजें और फिर मैं उनको चेक करूं कि वह हो गया कि नहीं हो गया। दिस इज वन। सेकेंड सिनेरियो, मैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन
आपका डेटा आपका अकाउंटेंट मेरे यहाँ मूव हो गया, जो कि मेरे टैली पे सिस्टम को आपके डेटा को इंपोर्ट कर लिया। मैं जो भी कुछ चेंज चाह रहा हूँ, आपका अकाउंटेंट आपके सजेस्टेड चेंज को चेंज कर रहा है, लेकिन वो मेरे सिस्टम पे हो रहा है, मेरे टैली वाले लाइसेंस पे हो रहा है। तो वो जो लॉग होगा, एडिट लॉग होगा, वो मेरा या मेरे किसी स्टाफ का हो जाएगा? नहीं, वो उसका होगा जिसका भी यूजर नेम होगा, प्रोवाइडेड ये जो भी डाटा चेंजेस हो रही है ये एडिट लॉग वाले सॉफ्टवेयर के अंदर ही हो रही है। एडिट लॉग में ही कर रहे हैं हम सब कुछ। हाँ, तो फिर ठीक है, जिस भी यूजर से आप कर रहे हो, या आपने कोई नया यूजर बना दिया, से सतीश जी आपका आप ही के नाम से बनेगा यूजर, तो आपने या आपके स्टाफ ने जो भी चेंजेस करी, दैट विल बी कैप्चर्ड इनटू द सिस्टम, एंड व्हेनेवर यू आर रिस्टोरिंग बैक दैट डाटा इनटू एट द क्लाइंट्स प्लेस, सबसे पहले तो ये कैप्चर हो जाएगा दैट इट हैज बीन रिस्टोर्ड बैक, राइट। नंबर 1। नंबर 2, उस यूजर की ने जितनी भी चेंजेस करी होंगी, दैट विल आल्सो बी कैप्चर्ड इनटू द सिस्टम। राइट, अंकित, इसका मतलब आई थिंक आई एम मेकिंग द राइट स्टेटमेंट। Yes, yes. ठीक है। ओके, यहाँ एक इशू ये आएगा, एन ऑडिटर कैन नॉट बी एन अकाउंटेंट। अगर ऑडिटर के एडिट लॉग से, यूजर आईडी से कोई चेंजेस किए गए, तो गलत है। वो हो गया, that the auditor also performed to a certain extent the accountant's job। क्योंकि कई बार, बहुत बारी ऐसा होता है, लास्ट डेज जब हमारे ऑडिट की लास्ट डेट है, फाइनलाइजेशन करनी है, और सभी कंपनीज एक साथ आ जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई टाइमली सारी कंपनीज ऑडिट के लिए आ गई। हमारी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जॉब है, लाइफ है, हम पर्सनल लाइफ सब भूलनी पड़ती है, ओवरनाइट काम करना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज का डाटा एक साथ आ जाता है और सब लास्ट डेट्स के आसपास आते हैं। हमारे लिए चैलेंज है कि किसी की भी ऑडिट डिले ना हो, टाइमली सबकी कंप्लीट हो जाए। उस मोमेंट पे अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट और हमारा स्टाफ लेट आवर्स में भी वर्किंग कर रहा है, जरूरी नहीं है जिस क्लाइंट का हम काम कर रहे हैं उस मोमेंट पर उस क्लाइंट का स्टाफ अवेलेबल हो, तो कुछ चेंजेस हमने खुद भी कर ली। अब ये जो एडिट लॉग में चेंजेस आ जाएंगे, वो बड़ी इससे पहले एक और क्वेश्चन, अब जो हमने यूजर आईडी क्रिएट की वो तो टैली स्पेसिफिक है, वो टैली की विद इन द टैली जो कंपनी का डाटा है, 100 ऑफ कंपनीज हो सकते हैं विद इन द टैली, वो जो यूजर आईडी है वो तो हर एक कंपनी में सेम यूजर आईडी से चलेगा। बिल्कुल। या फिर सर इसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप एक किसी पर्सन की, किसी भी अकाउंटेंट की आईडी से डाटा को लॉगिन करके काम कर सकते हैं, बट उस केस में फिर पता नहीं चलेगा कि आपने क्या चेंज किया, ये उसने क्या चेंज किया। मतलब इट विल बी प्रेज्यूम्ड वहां पर कोई राम प्रकाश का नाम का पर्सन है, उसी का आपने यूजर नेम पासवर्ड लिया, तो आप उसी का नाम कैप्चर होगा सिस्टम के अंदर। तो वो तो हमें कोई फर्क भी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं कि हमारा नाम कैप्चर हो। हमारा तो पर्पस ये होता है कि भाई ऑडिट के करते समय अगर कोई गलती मिल रही है, प्राइमरी फेसी हमें कुछ चेंजेस चाहिए कि ये चेक करते करते कोई टोटली मिस्टेक थी इनवाइस में, उसका करेक्शन करा दी, या एंट्री 1 लाख रुपए लिखनी थी, 10,000 रुपए लिखी गई एंट्री करते समय, वो करेक्शन करा दी, तो वो करेक्शन जायज भी है, करानी भी जरूरी है, पर वो हम एज एन ऑडिटर करवा रहे हैं, एज एन अकाउंटेंट हम नहीं कर रहे हो, नाम चाहते हैं, दिस इज द और राइट ना थिंग, अलाउड भी नहीं है। तो उस केस में आप ये सजेस्ट करते हो कि ऑलरेडी जो यूजर आईडी क्रिएटेड है अकाउंटेंट का, प्रेफरेबली तो वो अकाउंटेंट आपके सामने ही बैठा हो, वही चेंज करें, आप सजेस्ट करें, और अगर नहीं तो आप उसी की यूजर आईडी से चेंज करें। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। बिल्कुल, उसके बिहाफ पर आप काम कर रहे हो ना, आप एक्चुअल में काम नहीं कर रहे, आप उसके बिहाफ पर काम कर रहे हो। उसके बिहाफ पे भी काम करना अलाउड नहीं है ना जी, वो एक्चुअली तो उसी को बुला के ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, मैं ठीक समझ है, गया। आप चल सकते हैं आगे सर। ठीक है अंकित, और कुछ दिखाना है कुछ? हाँ, सो यही जो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन गेट कैप्चर्ड इन द ऑडिट लॉग। एक तो है कि वो वर्जन हिस्ट्री कैप्चर करे, वाउचर्स, मास्टर्स, लेजर ग्रुप, स्टॉक आइटम, वेरियस एक्टिविटी टाइप्स ऑफ मास्टर, वाउचर, कंप्लीट डेटा, अल्टर्ड हुआ है, क्रिएट हुआ है, डिलीट, रीसेट, कैंसल्ड, ऑप्शनल, import, migrated, sync, split, repair will be tracked.
and it will be shown to the user at the voucher master and the reports daybook के अंदर जो हमने देखा है और ledger vouchers के अंदर जो देखा है. And what will happen to existing edit log data once we disable the edit log feature in TP, जैसे हमने टेली प्राइम में नॉर्मल TP में माइग्रेट करके देखा था कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड है वो रिटेन होंगी. अगर यूजर उसको बंद कर देता है तो उसके बाद की जो एक्टिविटीज है वो ट्रैक नहीं होंगी, और जब दोबारा वो एनेबल्ड हो जाएगा जो पहले क्रिएटेड हुए थे वो रिटेन रहेंगी और वो दिखाई देगी. Will the same license work for both product Tally Prime and Edit Log? Yes, definitely. दोनों ही coexisting में काम कर सकते हैं. Although एक क्वेश्चन आया है उसको हम रिवैलिडेट करके बताएंगे कि ERP भी क्या इसके साथ Tally Prime, Edit Log और नॉन एडिट लॉग के साथ जो है काम करेगी या नहीं करेगी. बट इमीडिएटली एडिट लॉग और नॉन एडिट लॉग दोनों ही एक्सिस्टिंग में काम करेगी. Can the same data allowed to access simultaneously to a different product? ये नहीं है कि आप साइमल्टेनियसली एडिट लॉग में भी वही कंपनी रन हो रही है और नॉन एडिट लॉग में ओपन हो रही है. ये दोनों कंकरेंटली नहीं काम करेगा, तो एरर देगा और बंद कर देगा Tally इसको. So what the edit log data will the edit log data be backed up or restored? Yes, जैसे आज भी आप Tally Prime के डेटा को बैकअप लेते हैं और रिस्टोर करते हैं, वैसे ही फंक्शनैलिटी एडिट लॉग के अंदर है, और एडिट लॉग में जो भी ट्रांजैक्शन रिटेन होगी वो सारी चीजें बैकअप होगी. Can edit log viewed from browser और मोबाइल रिपोर्ट्स? नो, अभी नहीं है. जो मोबाइल के थ्रू जो रिपोर्ट्स हम एक्सेस करते हैं Tally Prime का डेटा ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर के थ्रू, तो उस ब्राउजर की रिपोर्ट्स में अभी एडिट लॉग की रिपोर्ट्स नहीं दिखाई देंगी, और बाकी अभी जो नॉर्मल रिपोर्ट्स आप जैसे देखते हैं वो रिपोर्ट्स कंटिन्यू है एज इट इज है. Tally Prime और AWS में क्या एडिट लॉग अवेलेबल है? यस है सर, बिल्कुल है. जो AWS क्या है कि हमारे क्लाउड इंटरफेस है. बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी Tally Prime को क्लाउड के थ्रू भी यूज कर रहे हैं. डेटा कंसोलिडेशन के लिए डिसेंट्रलाइज डेटा है तो सेंट्रलाइज करके यूज कर रहे हैं. एंड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए किसी भी समय पे काम करने का. अभी जैसे अगर फिजिकल मशीन में आपका डेटा स्टोर्ड है और Tally होस्टेड है तो आपको ऑफिस या उसी मशीन में जाके ही काम करते हैं. बट अगर क्लाउड है तो क्लाउड में सेंट्रलाइज डेटा है तो कहीं से भी किसी भी मशीन से आप लॉग इन करके काम कर लेते हैं. तो ये जो डिमांड था मार्केट में, तो हमने Amazon के साथ टाई अप करके ये सोल्यूशन को बिल्ड किया है, और पिछले 2 साल से ये हमारे कस्टमर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं. तो इसमें भी आप एडिट लॉग का ऑप्शन जो है, जो एग्जिस्टिंग यूजर है वो खाली जाके रिलीज अपडेट करें 2.1 का और कंटिन्यू कर ले. और कुछ अगर नए यूजर्स अभी आना चाहते हैं तो मनीष जी है, आपको हेल्प करेंगे इसके अंदर, क्लाउड के अंदर आने के लिए. तो यही है ब्रॉडली. और सर्वर वाला अगर कोई कस्टमर है सर्वर यूज कर रहा है तो सेम खाली रिलीज अपडेट करना होगा, और आपका दोनों जो है सर्वर और Tally Prime जो है दोनों उस पे अपडेट हो जाएगा. एंड कुछ अगर कस्टमाइजेशन की कुछ अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो एडिशनल जो फील्ड है, will modification done in the field added through customization in voucher and master be treated as altered? Yes, it will be considered as an alteration and captured in edit log with the TDL names used in the customization. So अगर customization है, कुछ यूज कर रहे हैं तो एडिशनल अगर फील्ड आप जोड़ रहे हैं तो वो भी altered एंड मॉडिफिकेशन के तौर पे कैप्चर होंगी. तो ये कुछ अपना Tally Prime जो AWS की क्लाउड की बारे में बात की है, तो उसका कुछ डीप कुछ प्रोडक्ट फीचर है कि डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन हम देते हैं, 2-वे ऑथेंटिकेशन लॉगिन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटा आपका फुली एनक्रिप्टेड रहता है, ऑटो बैकअप है, डायनेमिक आईपी हम यूज कर रहे हैं. ये टॉप मोस्ट फीचर है हमारा जो Tally Prime और AWS का फीचर है. तो अगर कुछ क्लाउड का भी रिक्वायरमेंट है आने वाले समय पर तो आप प्लीज रीच आउट कर सकते हैं मनीष जी से टच में आ सकते हैं, तो वो आपको रिक्वायरमेंट को समझ के. क्लाउड वाला Tally वाले प्रोवाइड कर रहे हैं या लोकल वेंडर्स जैसे सरस्वती प्रोवाइड करा रहा है? सर हमारे जो सर्टिफाइड जैसे आप मनीष जी हैं, मनीष जी ही आपको ये प्रोडक्ट आपको दे देंगे आपके रिक्वायरमेंट को समझ के. कितनी अमेज़न के थ्रू कर रहे हैं, तो अमेज़न के थ्रू मतलब नहीं, अमेज़न का के साथ कोलैबोरेशन करके हमने ये प्रोडक्ट को डिजाइन किया है सर. अमेज़न जो हमारा फ्लिपकार्ट अमेज़न वाली बात कर रहे हैं. करेक्ट, वो भी क्लाउड में सर पायनियर है. मतलब क्लाउड जैसे हम 36 साल से मार्केट में है, तो वैसे ही अमेज़न जो है वो क्लाउड इंडस्ट्री में काफी वो है, पॉपुलर है और पायनियर है आप कह सकते हैं. सो उन्हीं के साथ हमने कोलैबोरेशन करके एक सिक्योर्ड क्लाउड
प्रोडक्ट डिजाइन किया है कि जो बिजनेस आज की डेट पे अपने कस्टडी में जो डेटा रखा है, तो वैसे ही एक जो सोल्यूशन जो है वो डिजाइन हो पाए क्लाउड के अंदर भी, तो उनकी कोलैबोरेशन के थ्रू हमने इस सोल्यूशन को डिजाइन किया है। ठीक है। सो आप उसका डेमो वगैरह भी देखना चाहें तो मनीष जी आपको दिखाएंगे लेटर ऑन व्हेनेवर यू आर अवेलेबल। ठीक है, सोल्यूशन को दे सकते हैं। सो विद दिस आई थिंक हमने ब्रॉडली कैप्चर किया है सारे एस्पेक्ट को। सतीश जी, ये जो आपका POP क्वेश्चन था ना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टैली ऑन क्लाउड is a very widely used feature nowadays by most of the CAs and business entities, especially those जिनकी multiple locations हैं, वो बहुत ज्यादा यूज करती हैं। और ऐसे बहुत से CA हैं, आपके ग्रुप में भी होंगे, जो अपने क्लाइंट्स के यहाँ टैली ऑन क्लाउड इसलिए रिकमेंड करते हैं so that they can access their tally and they can guide them, they can audit their transactions along with the supporting documents. इसमें एक छोटा सा कस्टमाइजेशन लगता है जिसके थ्रू जो सपोर्टिंग पेपर्स होते हैं लाइक परचेज बिल्स, ये सब वाउचर के साथ अटैच भी हो जाते हैं। तो ये आजकल काफी पॉपुलर हो गया ये फीचर आजकल। और क्या इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है? ये सर मैं आपको ऑफलाइन बता दूंगा। ठीक है। अगर किसी का कुछ पूछना हो तो आई हैव शेयर माय नंबर, तो दे कैन कॉल मी और दे कैन वैसे बताया तो मनीषी का नंबर सब लोग चैट पे नहीं देख पा रहे होंगे। 9810178771, ये मनीष गुप्ता जी का नंबर है। 9810178771। एक बारी अंकित जी का कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं ओरी जी। अंकित जी, आप अपना नंबर दे देंगे प्लीज? आप अनम्यूट करके। सॉरी, हाँ, मेरा नंबर है 95600 4822। 95600 4822। 4822। ठीक है। कुछ और बताना है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता आ रहा है। आई थिंक अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर आगे के लिए सतीश जी कोई सेशन आपको करना हो तो आप हमें बता दीजिए। हाँ जी, जरूर, डेफिनेटली बताएंगे। और मैंने कोशिश तो की है, मेंबर्स के जितने क्वेश्चंस कुछ मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे, वो मैंने बीच में पूछ लिए हैं। विद दिस लेट अस एंड दिस सेशन। आई थैंक मनीष जी and Ankit and Balwant ji for your valuable time, and especially Manish ji for managing the show in such lesser number of hours. हमने 24 घंटे से कम समय में ऑर्गेनाइज किया, बल्कि मनीष जी ने तो मुझे 2 बजे का भी ऑफर दे दिया था, पर आई इंटेंशनली केप्ट इट 3। मैं कहा चलो 2 बजे सब लोग कई बार लंच कर रहे होते हैं। So thank you very much, sir. We'll definitely join you on a different platform, different occasions, on different issues. And we have for our members, we have another webinar tomorrow, which also may not be there for as far as CPRs is concerned, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो काउंसिल ने अभी डिसीजन लिया है, डिसीजन अभी कम्युनिकेट होना बाकी है। 1 अप्रैल से वर्चुअल वेबिनार्स इंस्टीट्यूट ने फॉर CPRs बंद कर दी है। ये क्या लिखा है, चांदनी जी का है, नो एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू इट। चांदनी जी क्या कहना चाह रही हैं, थोड़ा सा एलोबरेट करें। अभी तो है, हम सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सतीश जी, आपको ना इसमें शायद अलाउ टू टॉक का फीचर एनेबल करना पड़ेगा if someone wants to ask any question। मैं कर सकता हूँ अगर कोई चाहे तो। नहीं, इसमें 4 लोगों के नाम आ रहे हैं, अंकित, अरविंद, मोहित, लाइक दैट। अच्छा, वो कई बार गलती से भी जाते हैं। मैंने मोहित जी को अलाउड टू टॉक कर दिया, निखिल जी को कर दिया, रितेश बंसल and Chandni Singla. I've allowed all you 4 to speak. Please come with your voice if you want to ask anything. Okay, so thank you Manishi once again. Let's end this session here and we'll definitely join. जो मैं मैसेज दे रहा था कि टुमारो विल हैव ऑडिट, बैंक ऑडिट के लिए वेबिनार है 3 घंटे की, 4 to 7. डू जॉइन अस। थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सतीश जी।
Thanks a lot. Real privileged to be part of this session to share some knowledge to a prestigious group and knowledgeable group. So forgive us if we could not give you the proper answer to some of the questions. So वो जरूर मैं आपसे चाहूंगा, वो तीनों वाला जो चाहिए मैं Yes, मनीष जी को फोन करता रहूंगा अदरवाइज। yes, thank you Manish ji. Okay. Sir, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय।